जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपणे काव्य भण्या हता। आज आपणे बीजो पाठ भणीशुं। विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारी पासे पाठ्यपुस्तक हशे तो पाठ्यपुस्तक लई ल्यो अने एनी अंदर पाना नंबर 8 काढीने रेडी थई जाओ अने आपणे पाठ विषे अभ्यास करीशुं। आपणा पाठनुं नाम छे ईदगाह प्रेमचंद। तो प्रेमचंद નો જન્મ 1880 માં અને નિધન 1936 માં થયો હતો। તો પ્રેમચંદ એક ઉપન્યાસકાર છે અને તેમણે હિન્દીમાં ઘણી બધી એવી કૃતિઓ આપી છે। તો આપણે એમના પાઠ વિશે અભ્યાસ કરીશું। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। विद्यार्थी मित्रों, रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद यानी कि 1 महीने के बाद, लेकिन 1 महीना પછી ईद આવે છે। રોજે રોજે यानी कि આપણે જાણીએ છીએ, આપણે હિન્દુ ધર્મની અંદર ઉપવાસ કરીએ છીએ। તો મુસલમાનો પણ શું રોજો કરે છે। રોજો यानी कि એમને આખો દિવસ કઈ ખાવાનું હોતું નથી, પરંતુ રાત્રે એમને ચંદ્રને જોયા પછી એ લોકો કઈ ખાવાનું ખાય છે, એટલે કે એક પ્રકારનો ઉપવાસ કહેવાય છે। તેવા કે ईद એટલે કે 30 દિવસ પછી કે 1 મહિનાના રોજા પછી એ લોકોને ईद આવે છે। ईद એટલે કે એમનો તહેવાર ईदगाह। બરાબર, આપણો કેમ દિવાળીનો તહેવાર હોય છે અને આપણે ખૂબ મજા કરીએ છીએ અને આપણે ઘણા સમયથી એની રાહ જોતા હોઈએ છીએ, એવી જ રીતના મુસલમાનો ઈદની રાહ જોતા હોય છે। બરાબર છે। તો એમનો 30 દિવસના રોજા પછીનો દિવસ એટલે કે ईदगाह। તો ईदगाहનો દિવસ આવી ગયો છે અને લોકો એની રાહ જોઈને બેઠા હતા। तो कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। प्रभात यानी कि सवार। तो आज ईद है, तो ईद का प्रभात बहुत सुहावना है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल और संसार को ईद की बधाई दे रहा है। बराबर, प्यारा। प्यारा यानी कि वहाला। પછી शीतल, शीतल यानी ठंडा। तो यहाँ पर कि आज ईद का त्योहार है, इतनी सुबह सुंदर है और सबको क्या दिखा दे रहे हैं कि कितने कि ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में इतने हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुटे में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते में कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी सानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर यानी कि बपोर का समय हो जा रहा है। हम देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા કેટલાક લોકો શું કરે છે કે કોઈ પાસે કે ભાઈ સમય નથી તો સવારમાં ઉઠીને દોડે છે, કોઈ પાસે જાય છે અને કોઈ પાસે કે ભાઈ સમય આવતા આવતા શું થઈ જશે કે दोपहर यानी कि बपोर થઈ જશે। એટલા માટે જલ્દી ફટાફટ એ લોકો શું કરે છે, પોતાનું કામ પટાવી લે છે કે આજે ઈદના મેળામાં જવાનું છે। આપણે કે કોઈ મેળામાં જવાનું છે, તૈયાર થઈ જઈએ જલ્દી જલ્દી અને બધું કામ પટાવીને, તેવી જ રીતના મુસલમાનો શું કરે છે કે ભાઈ ઈદનો તહેવાર આવી ગયો છે, તો એ તહેવારમાં જવા માટે લોકો ઉતાવળા થઈ રહ્યા છે। 3 कोस की पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। सैकड़ों यानी कि हजारों। सैकड़ों यानी हजारों, मिलना बैठना। આપણે કેમ દિવાળીનો તહેવાર હોય અને લોકોને પગે લાગીએ છીએ, હાથ મલાવીએ છીએ, તો મુસલમાનો શું કરે છે, એકબીજાને ગળે લાગે છે, એટલે કે ભેટે છે। બરાબર છે। તો આજે શું કહે છે કે જાણે આજે તો હજારો લોકોને આપણે ભેટવાનું છે, ગળે લાગવાનું છે અને 3 कोस का पैदल रास्ता। पैदल यानी कि चालता जवानुं छे। बराबर, चालता चालता ये मेळामां एमणे जवानुं छे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, એટલે કે ચાલીને જવાનું હોય, મેળામાં ફરવાનું હોય અને બપોર પહેલા આવું શક્ય નથી એમ કહે છે। બરાબર, બપોર તો થઈ જ જશે। तो संभव नहीं है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। सबसे ज्यादा प्रसन्न એટલે કે સૌથી વધારે આનંદ હોય તો એ કોને છે, કે છોકરાઓને હોય ને। આપણે નાના હતા
બરાબર તમને ખબર છે કે તમે પણ કંઈક મેળામાં જવાના હોય અથવા તો કંઈક તહેવાર હોય તો તમે જવા માટે ઉતાવળા થઈ જાઓ, એની રાહ જોઈને બેઠા હોય કે આ દિવસ ક્યારે આવે। तो એવી જ રીતના છોકરાઓ ખૂબ આનંદમાં છે। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। कोई के रोजो राख्यो છે તો કોઈ કે નથી રાખ્યો, પરંતુ છોકરા માટે તો શું ઈદના મેળામાં જવા માટેની ઉતાવળ છે, બરાબર છે। તો अब जल्दी वह भी ईद जाने की खुशी के हिस्से की चीज है। रोजे तो बड़े बूढ़े के लिए होगी, इनके लिए तो ईद है। बच्चे क्या कहते हैं कि रोजे तो किसके लिए है, तो वो तो बड़े बूढ़े के लिए, हमारे लिए तो ईद है, ईद का त्योहार है, आनंद खुशी का त्योहार है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गए। શું કહે છે કે રોજ અમે આપણે કેમ તહેવાર હોય તો રોજ એની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે, તો એવી જ રીતના એ લોકો પણ શું કે રોજ ઈદની તહેવારની રાહ જોઈને બેઠા હતા અને આજે ઈદ આવી ગઈ છે, ખુશીનો તહેવાર આવી ગયો છે। अब जल्दी पढ़िए, इन लोगों के ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा, धन यानी कि पैसा। तो उसके कई दिनों से वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, वो पैसे उसके जेब में है, तो जेब ईद के लिए उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो वह पैसे जेब से निकालते हैं और देखते हैं, फिर जेब में रख देते हैं। तो महमूद गिनता है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। फिर मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। इस प्रकार वह सब लोग क्या करते हैं, पैसे जेब में से निकालते हैं, गिनते हैं और फिर वापस जेब में रख देते हैं। उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजों लाएगी, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। वो क्या सोचते हैं कि मैं इन पैसों से ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा, खिलौने लाऊंगा, ऐसे वैसे कुछ न कुछ वह सोचते रहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। हमारे जो पाठ है उसका जो पात्र है हामिद, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। अब हमारे पाठ का टॉपिक आएगा कि हामिद वह सबसे ज्यादा प्रसन्न है। तो हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न हो गया है और गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, हैजे की भेंट हो जाना यानी कि उसकी मृत्यु हो जाना, ये मुहावरे है, हैजे की भेंट हो जाना यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है। हामिद कैसा लड़का है? गरीब लड़का है, बेचारा दुबला पतला लड़का है, उसके पास पैसे नहीं है। उसका बाप यानी कि पिता, उसके पिता अगले साल ही क्या हो गए हैं? हैजे की भेंट हो गए। हैजे की भेंट हो गई यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, उसके पास तो पैसे भी नहीं है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। क्या हो गया? उसकी माँ भी मर गई, पिता तो मर ही गए थे लेकिन उसकी माँ भी मर गई और वह किसके साथ रह रहा था? उसकी बूढ़ी दादी अमीना के साथ। उसकी दादी का नाम क्या था? अमीना। याद रखना, एक वाक्य के सवाल में आपको पूछा जाएगा। तो अमीना, उसकी दादी का नाम है अमीना। तो हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रह रहा था क्योंकि उसके माता पिता तो मर चुके थे, वह गरीब था। तो हामिद के पांवों में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गए, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रही है आज ईद का और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबे जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो वो क्या बोल रहे हैं अमीना कि आज ईद को कोस रही है, गाली दे रही है, डांट रही है कि ईद क्यों आई? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोग गरीब थे, उनके कई बच्चे लोग खुश थे, उनके पास पैसे थे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने बच्चे हामिद को क्या पैसे देगी? वो ईद को गाली दे रहे कि क्यों आई?
आज मेरे बच्चे के पास मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, तो मेरे बच्चे को कैसे दूंगी? इस प्रकार वह ईद को पोस रही है। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोट नहीं, मुहावरे। दिल कचोट यानी कि दुख होना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, वो लोग गरीब थे, तो वो अपने बच्चे को क्या देगी अमीना? तो इसीलिए वह दुख देख रही थी। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे? अपने पिता के साथ। हामिद के तो पिता भी नहीं थे और माँ भी नहीं थी, तो वो किसके साथ जाएगा? इसीलिए वह दुख देख रही थी। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले जाने? हामिद का तो माँ भी और बाप भी, तो कौन है? अमीना है, यानी कि उसकी बूढ़ी दादी है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएगी। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 जाने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो मिसाल है, और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। क्या बोल रही है अमीना? कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने 3 कोस का रास्ता है, वह बेचारा कैसे चलेगा? नन्ही सी जान है, वह मन ही मन वह सोचती रहती है, और ऐसे वह ईद के दिन ऐसे ईद को डांट रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। क्या बोल रहा है हामिद? कि अम्मा आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, लेकिन સૌથી પહેલા હું આવી જઈશ, તો चिंता नहीं कर मम्मी, एम अमीना ने कहे छे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कहीं दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। क्या बोल रहे हैं कि हामिद तो मेला लगा, सब लोग जा रहे थे, हामिद दौड़कर आगे चले जाता था, और एक पेड़ के नीचे बैठकर वह इन सब साथ वालों का वह इंतजार कर रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, वह अदालत है, वह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। क्या बोल रहे हैं कि अब तो मेले का रास्ता शुरू हो गया। ईदगाह थी, इसलिए मेला लगा था, कई बड़ी बड़ी इमारतें आ रही थी, कॉलेज आ रही थी, मिठाइयों की दुकान आ रही, खिलौने की दुकान है। आप लोग तो मेले में गए ही होंगे, इसीलिए आपको पता ही होगा कि मेले में क्या होता है। कई प्रकार की दुकानें होती है, चक्रोर होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, मेला लगा हुआ है, यानी कि मेलो लाग्यो छे। એ મેળાની અંદર હામિદ જાય છે, ઇમારતો આવે છે, કઈ મોટી મોટી દુકાનો આવે છે, અને દુકાનો પર ભીડ લાગેલી છે। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के ढले वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई डर और पन नहीं दिखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर पर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं में एक कड़ी में पिरोए हुए। भातृत्व यानी भाईचारा। આપણે કેમ મંદિરમાં જઈને બધા એક સાથે પગે લાગતા હોય છે ભગવાન, એવી જ રીતના ઈદગાહ આપણે કેમ મંદિર કહીએ છીએ, તો એવી રીતના મુસલમાનોમાં જે એમનું પગે લાગવાનું સ્થળ હોય એને શું કહેવાય? ઈદગાહ કહેવાય। તો ઈદગાહમાં શું કહે છે કે આટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરેલી છે, બધા એક સાથે બેસીને પોતે અલ્લાહને પ્રણામ કરે છે, એટલે કે નમાઝ પઢે છે, અને એક સાથે બધા ઊભા થાય છે। તો આટલું સુંદર दृश्य, मनोहर दृश्य आकर्षित करे छे। नमाज खत्म हो गई, એટલે કે नमाज खत्म हो गई એટલે પૂરી થઈ ગઈ। लोग आपस में गले मिल रहे थे, आपस में गले मिला। આપણે દિવાળીના તહેવારમાં લોકો એકબીજાને પગે લાગે છે, એવી જ રીતના મુસલમાનો શું કરે છે? તો એકબીજાને ભેટે છે, એટલે કે ગલે લાગે છે।
अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा એટલે કે ભીડ લાગેલી છે કે નાના છોકરા હોય તો પહેલા ક્યાં જાય? મીઠાઈની દુકાને જશે, ખાવાની દુકાને જશે, અથવા તો બીજે ક્યાં જાય? રમકડાની જાય ને, રમકડાની દુકાને નાના મોટા રમકડા લેશે, बराबर। ग्रामीणों का यह डर इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। बाळको तो એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા છે, બરાબર। ગ્રામીણ એટલે ગામડાના બધા બાળકો છે તો એ તો વર્ષની અંદર એકવાર મેળો લાગતો હોય છે એટલે શું કરે છે? લોકો તો ખૂબ ખુશ હોય છે, મેળામાંથી આ લાવશું, પેલું લાવશું, રમકડા લાવશું, બરાબર। અને એના માટે કેટલાય દિવસ સુધી એ લોકો પૈસા ભેગા કર્યા હોય છે। તો પૈસા ભેગા કર્યા હોય છે અને એ પૈસા જે ભેગા કર્યા હોય છે એનું ઘણી બધી વસ્તુ એ લોકો લે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પાના નંબર 8 અને 9 એ અહીંયા સુધીનો આપણો પાઠ સમજાવ્યો છે। એનામાંથી કેટલાક પ્રશ્નો જે તમારે જાતે બનાવવાના છે, બરાબર છે। તો જાતે એના પ્રશ્નો બનાવવાના છે, તમારે રફ બુકની અંદર લખવાના છે, બરાબર। ઓછામાં ઓછા તમારે 15 પ્રશ્નો, આટલું જેટલો પણ પાઠ ચાલેલો છે 15 પ્રશ્નો બનાવવાના છે, રફ બુકમાં લખવાના છે। અને અન્ય પ્રશ્નોત્તર હું તમને અભ્યાસક્રમને અનુરૂપ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમને મોકલીશ, એ તમારે પાકી બુકમાં લખવાના છે। અત્યારે જે તમે પ્રશ્નો બનાવશો એ ક્યાં લખશો? રફ બુકમાં। ઓકે।